ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸੋਜ ਸਿਹਪਨ ਰੂਪ। ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸੋਜ ਸਿਹਪਨ ਰੂਪ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਦੇ ਬਹਿਰੂਪ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਪੜਿਆਰ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਦੇ ਬਹਿਰੂਪਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆਫਤਾਬ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਵੇਖਣ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਫਤਾਬ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਫਤਾਬ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੱਜਣ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਫਤਾਬ ਨਵਾਬ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਮ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਸਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਫਤਾਬ ਨਵਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਗ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਇਹ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਖ ਉਸਨੇ एतबार दिलाया कि आग है, लाख उसने एतबार दिलाया कि आग है, लेकिन यकीन जल के ही आया कि आग है। ये शेर आफताब नवाब दा है। किसी भी नौजवान को इंज दी सियानफ दी आम तौर पर तोको नहीं होंदी, लेकिन असी धन्नवादी हाँ अपने वीर दे आफताब नवाब दे। पूरा पंजाब इन्हां ते मान करदा है। और मैनूं सुबह दस रहे सन कि इन्हां दी जिहड़ी जम्मन पोएम है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧੰਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਧੰਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਦੂ ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨਵਾਨ ਜੀ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ बहुत शुक्रिया आजम मलिक भाई। वैसे तो मैं उर्दू गुफ्तगू ज्यादा सहूलत, क्योंकि तुहानूं पता है तदरीस नाल वाबस्ता जी, उर्दू ज्यादा सहूलत समझना। लेकिन तुसीं फरमाइश भी पंजाबी सुनाउण दी कर दित्ती है ते पंजाबी दोस्त देख रहे ने, उन्हां तों पेश की माजरत अगर कोई कमी पेश होवे, क्योंकि पंजाबी दे हवाले नाल मैं बहुत घट लिखना या बहुत घट शेर कहे ने जी। बहरहाल जो शेर मैनूं आ रहे ने तुहानूं सुना देना। जिंदी कच्ची छत है सोना, जिंदी ओनू सारा दीन है। वाह वाह। जिंदी जिंदी कच्ची छत है सोना, ओनू इट्टां गारा दीन है। वाह वाह। ओले हो के काफर होए, आहा वाह वाह। लोकां विच गुजारा दीन है। आहा वाह वाह वाह। फिर पढ़ो जी कोई। वाह वाह वाह। ओले हो काफर होए, लोकां विच गुजारा दीन है। आहा वाह। अद्धा दीन है दुनियादारी, आहा वाह वाह। दुनियादारी सारा दीन है। क्या बात, क्या बात है। वाह 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 वाह। चंद शाह याद सन जी। वाह वाह वाह। बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा जी। अकरम रेहान साहब साडे पंजाबी दे बड़े सोहने शायर, वो भी सुन रहे ने और जी आइयां नूं कह रहे ने, और कह रहे ने कि बहुत उम्दा शायर ने। ये तुहाडीआं मुहब्बतां ने आफताब नवाब नूं जी सारे जग ते मुतारफ कर दित्ता। जफर अवान साहब साडे दोस्त, बहुत सोहने पंजाबी शायर, वो भी जी आइयां नूं आख रहे ने। ते जफर अवान साहब दे आउण नाल साडा मुशायरा भी अज दी जिहड़ी तकरीब है इंटरनेशनल हो गई है, क्योंकि बाहरों बैठे दोस्त भी
ਸੋ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। साबिर साहब, हो आप सकता है। जैसे शायर की हौसला अफजाई मेरे लिए सनद रखती है, सनद का दर्जा रखती हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है जी। अच्छा, इकरार मुस्तफा साहब ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਆਫਤਾਬ ਨਵਾਬ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਰਦੂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ है। और एक महफिल में भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ पहले कहीं कि अगरचे मैं गुफ्तगू भी ज्यादातर उर्दू में करता हूँ या उर्दू जबान में शेर कहने की खराब आदत में मुब्तला हूँ, लेकिन उस जबान में बात करने का और उस जबान के बारे में बात करने का मुझे पूरा हक है, जिसमें मैंने लोरियां सुनी है। वाह 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 वाह, वो मुझे पंजाबी जबान से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार करता हूं, पंजाबी अदब बहुत शौक से पढ़ता रहता हूं। अच्छा सर, ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ, ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੌਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਦਬ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਰਦੂ ਕਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। जी गजल अता मैं 2-3 अशार से आगाज करता हूँ, उर्दू के अशार सुना देता हूँ आपको। जैसे हंसना सिखा रहे थे मुझे, जैसे हंसना सिखा रहे थे मुझे, हंसना सिखा रहे थे मुझे, वाह, तुम तो पागल बना रहे थे मुझे, वाह 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 वाह, शुक्र है यार कुछ हवा आई, वाह, शुक्र है यार कुछ हवा आई, शुक्र है यार कुछ हवा आई, ये दिए तो जला रहे थे मुझे, वाह 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 वाह, ये दिए तो जला रहे थे मुझे, आंख खुल गई उनकी, देख ले आंख खुल गई उनकी, वो जो आंखें दिखा रहे थे मुझे, वाह 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 वाह, वो जो सुनने वालों का ज़ौक आली था, सुनने वालों का ज़ौक आली था, बेसुरे थे जो गा रहे थे मुझे, वाह वाह वाह, सुनने वालों का ज़ौक आली था, बहुत वाज़ेह, वाह वाह वाह, बहुत खूब जी। ਦੋਸਤ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। मलिक साहब, चूंकि मेरी पैदाइश देहाती माहौल की है, देहात में परवरिश पाई, देहात में गांव में पैदा हुआ, तो जाहिर है जिस तरह अमूमी तौर पर बच्चों के बचपन की रुदादें और वाकयात होते हैं उससे ज्यादा मुख्तलिफ तो खैर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये तख्लीकी सलाहियत का इदराक ऐसे करना किसी तारीख मुकर्ररा के हवाले से ये तो नामुमकिन है, लेकिन इतना है कि ऐसी कोई भी चीज जिसकी समाज के हवाले से जो भली महसूस होती थी, या कोई गीत है, कोई माया है, दौड़ा है, जिस तरह देहातों में शादियों और तकरीबात का माहौल होता है, तो ऐसे माहौल मुझे आगाज ही में बहुत पसंद थे। घर में तो 2-4 किताबें थी, देखता था, स्कूल में प्राइमरी में था और उसके बाद 6वीं 7वीं 8वीं तक मैं जानबूझकर असातिज़ा से सवालात करता था
यानी कोई गालिब का शेर पढ़ लिया, याद कर लिया और फिर जाकर क्लास में उस्ताद से पूछा कि ये क्या कह रहा है शायर, मुझे समझाएं। तो वो शायद एक आगाज था, या कह लें कि एक इब्तदाई लगन और लगाव था। वाह। तो वहीं से कोई इब्तदा हुई, और फिर कब शेर कहना शुरू कर दिया, ये याद करना या बताना मेरे लिए जरा मुश्किल इसलिए है, वाह कोई जी। तारीख तो मुकर्रर नहीं है। बहरहाल 7वीं 8वीं में था जब बेवजन से, और जैसे अपने ख्याल या अपने एक इजहार का बंदा मीडियम तलाश करता है, तो वो मैं उस बिल्कुल। दौर में आगाज उस दौर में हुआ, स्कूल के जमाने की बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि इस फन में तंजीमी कवानीन या उसूल भी होते हैं, तो वो वाह सीखना शुरू किए, पढ़ना मुताला शुरू किया, मुशाहिदे को बयान में लाने के लिए मुझे अल्फाज मिलते गए, बस ऐसा कुछ। वाह। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 1-2 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਸਾਬਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जो तुम और चीज याद है कोई? पहले सुना तो चुका हूँ, लेकिन शायद उस वक्त साबिर भाई ने नहीं सुने, मैं 1-2 शेर और सुना देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हा दा कम भी यार नहीं हुंदा, हा दा हाँ सड़दा है ठार नहीं हुंदा। वाह। हा दा काम ही यार नहीं हुंदा, हा दा कम भी यार नहीं हुंदा, आहा वाह हाँ सड़दा है ठार नहीं हुंदा। आहा वाह मैनू भावे सिर ते चाल है, आहा मैनू हौली भावे शह सिर दा ते, भार नहीं। वाह वाह। फिर ता करो जी, मैनू भावे सिर ते चाल है, हौली शह दा भार नहीं हुंदा। क्या बात है, क्या वाह 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 आफ्ताब भाई वाह वाह वाह। लड़दे होए मर जाइए ते, आहा इनदा मतलब हार नहीं हुंदा। वाह वाह वाह। लड़ते हो ये मर गए ये, बहुत खूब जी। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। बस वो एक कह लो कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पंजाबी में अच्छा शेर जरूर कह सका, सारी गल है मां बोली है। साबिर साहब या इस तरह के जितने बड़े शोरा ने उन्होंने को तो मैंने दुआ की भी बड़ी जरूरत है, या दीगर जितने अच्छा शेर, तुसी बजाते खुद माशाल्लाह पंजाबी के बड़े अच्छे सेवक हो, शायर हो, ख्वाहिश है बहरहाल जो ऐसी पेश कर दिता गया पंजाबी। ਇਹ ਸਰ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਰਦੂ 'ਚ ਇੰਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਲਿਖੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਤਾਸੁਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਬ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਰਿਆਫਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਸੁਬ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं मेरी तदरीस सारी उर्दू जबान दी है, मैं खुद एमफिल कर रहा उर्दू में, पढ़ा उर्दू रहा, ते मैं पंजाबी गुफ्तगू करना या पंजाबी शायरी पढ़ना सुनना सुनाना मैनू मेरा पसंदीदा चीज़ां ने। बल्कि क्लास विच कई दफा लैक्चर के दौरान मैं कुछ गल्लां पंजाबी च इसलिए कर जाना कि जिस तरह बंदा अपने बहाव विच अपने ओरिजिन अपनी असलियत की तरफ वापस आना शुरू होता है। वाह वाह वाह। ये सर एडी सोहनी तुहाडे लग रही है। अच्छा एडी सोहनी पंजाबी तेरे मुंह लग रही है, इतनी खूबसूरत ज़बान है, बड़ी मजबूत और पायदार ज़बान है, ऐसी तो कोई गल ही नहीं। वाह। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਖਰ ਤੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਫਤਾਬ ਨਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਮੁਸਤਫਾ ਅਨਵਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, और नाल ही थल्ले लिखा है कि इन्हों पूछो कि शादी कदों करनी सो। मुस्तफा भाई के सामने हम तो पूछिए कि शादी किते बगैर बड़ा शायर नहीं बन सकता। ख्याल है
ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਅਨਵਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਲਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਿਕ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆतिश नासिर ਜਾਂ ਜੀ ਜੀ ਮੀਰ ਅਨੀਸ गालिब, एक चीज़ां ने, या पंजाबी क्लासिक्स ने हजरत बुल्ले शाह ने, या बाबा वारिस शाह, ख्वाजा फरीदुद्दीन गनशकर ने, वाह यानी बहुत क्लासिक्स ने। मौजूदा अदब विच भी पंजाबी उर्दू दोवां ज़बानां च बहुत सारे शोरा मेरे पसंदीदा ने। अख्तर उस्मान साहब, इफ्तिखार वाह आरिफ साहब, वाह अली अकबर नातिक, या क्या मेरे बात है। पसंदीदा शोरा ने। वाह तजम्मुल कलीम साहब, साबिर अली साबिर, मुस्तफा अनवर, और नाम भी काफी सारे गिने जा, आसिम जी जी जी, क्या बड़ियार, वाह मेरे वाह। पसंदीदा शोरा ने। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਨ, ਮੈਂਟੋਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ ਤੇ ਧੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਛੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? मलिक साहब, जहाँ तक किताब शाया करने या उसे मार्केट में लाने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कुछ मसाइल हर माशरे में तकरीबन हैं, लिखने वाले के साथ भी हैं, शेर कहने वाले के साथ भी हैं, वैसे ही जैसे माशरे के साथ चलते हैं। अब शेर कहने वाला कोई भी है तो वो चाहेगा किसी भी जरिए से, मीडियम से वो लोगों तक पहुंचे। जी, एक बात तो ये, और उसका एक, जिस तरह अब तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और बहुत सारे ई बुक्स का रिवाज भी, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती है, किताबें हैं, इनका तो जाहिर बात है एक जरिया लोगों तक पहुंचने का और अदब में अपनी एक जगह या नाम बनाने का एक है। और दूसरा है कि आप सफ़े पर आते हैं लोगों के सामने आने के लिए, तो जाहिर है वो शेर कहने वाले की ख्वाहिश भी होती है, कोशिश भी होती है कि वो जल्द से जल्द सामने आए। इसके साथ जो दूसरा एहसास जुड़ा हुआ है वो ये है कि हम बड़ी तेज रफ्तारी से बड़े हो जाना चाहते हैं। वाह वाह वाह। हमें बड़ा होने की जल्दी होती है, तो हमें यूं लगता है, मेरा जहां तक अपना मुशाहिदा है, दोस्तों का ख्याल होता है कि किताब छाप देने से शायद कोई बड़ा शायर बन जाता है और उसका नाम आता है कि ये साहिब किताब शायर है, उसकी किताब छप चुकी है। तो ये जो एक ग्रैंडियर की ख्वाहिश या एहसास है, ये भी जल्दी करने में उसका मुहर्रिक और सबब बनता है। तो यही वजूहत होती हैं। जैसे कुछ बंदे को लग रहा हो कि मैं अगर अच्छा, एक 2 रोज पहले एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि यार मैं ना शेर कहता हूँ तो 5 दिन बाद देखता हूँ उससे मिलता जुलता कोई शेर व्हाट्सएप या फेसबुक पे मुझे कहीं किसी और का मिल जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं शेर कह रहा हूँ तो जल्दी से जल्दी ये किताब की सूरत में दे दूं। बहुत सारी वजूहत बन जाती है। तो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमें बड़ा होने की जो जल्दी पड़ गई है ना, वो भी है इसमें। और इंसान को बड़ा होने की ख्वाहिश तो होनी चाहिए, शौक भी होना चाहिए, लेकिन बड़ा होने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा होने की जल्दी में भी आता है, हम किताब छापने में जल्दी करते हैं। वाह, बहुत अच्छी गल सी कीती। अच्छा सर, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਜੋ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਲਾਮ। जी जी, 2-4 शेर उर्दू के मैं सुना। जी। अदा पूरी कहाँ कीमत करी है, वाह अभी तो आंख ही मैंने भरी है। वाह 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 वाह। अदा पूरी कहाँ कीमत करी है, अभी तो आंख ही मैंने भरी है। मैं उजरत पर बना हूँ शाहजादा, आहा, मैं उजरत पर बना, मैं उजरत पर बना हूँ शाहजादा। वाह। ये पहलू में किराए की परी है। आहा, वाह वाह वाह।
वाह वाह वाह, फिर पढ़ो सर एक दफा। मैं उजरत पर बना हूँ शाहजादा, ये पहलू में किराए की परी है, आहा, मगर ये आईना कहता है मुझसे, मगर ये आईना कहता है मुझसे, तू मेरी काबिलियत पर मरी है, आहा, आहा, वाह वाह, खुलूंगा तुमसे तब तुम पर खुलेगा, आहा, खुलूंगा तुमसे तब तुम पर खुलेगा, नजर आना निहायत सरसरी है, वाह वाह वाह, नजर आना निहायत सरसरी, वाह निहायत वाह सरसरी। वाह वाह वाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब। बहुत ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ WhatsApp ਦੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਔਰ ਕਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਕਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਕਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। तो ਠੀਕ ਹੈ। साबिर साहब जिस तरह के तली ते जमाना है अजकल, ਹਾਂ ਹਾਂ, कंधा दियां अखां ने, ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ तो ਜਿਹੜੇ ਤੇ दीवारों की ਦੇਖਦੇ आंखें ਨੇ। हैं, आप ਹਾਂ, हथेली पर ਲੋਕ आपके जहान आ गया, जमाना आ गया, तो ये कहाँ मुमकिन है कि आपकी तखलीक चुरा ली जाए। वो ਵਾਹ जाहिर है कहीं ना कहीं उसका एहतसाब हो जाएगा, या वो कहीं ना कहीं जरूर आप पर गिरफ्त उस पर पाई जा सकती है, अगर ऐसा है। एक चीज वाह से वाह, इनकार नहीं है, यानी जमाना इतनी तेज, हम एटम बम के जमाने से भी आगे के लोग हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक सोच रखने वाले, हम रोशनी की रफ्तार से सफर करने की तरफ रवान रवान लोग हैं। वाह वाह वाह, हम इतने तेज और इतने आगे बढ़ते हुए जमाने के लोग हैं। अब यहाँ सोचों की जो रफ्तार है वो हो सकता है कहीं उसमें कोई टकराव आ सकता है, ये कोई अजीब बात नहीं है। ख्याल को मुमासिल हो जाना या ख्याल का टकराव, ये हो सकता है, इसमें कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल एक चीज सही। सामने आ जाती है, जो शायर ही नहीं है वो मेरी जी गजल अपनी फेसबुक की वाल पर लगाता है या कहीं लिख देता है और नाम ही नहीं लिखता, जी तो जी, मेरे ख्याल में वो तो शायर ही नहीं है, उसका मैं क्या करूं। तो जो बिल्कुल ठीक। शायर है वो ऐसा करेगा नहीं। ऐसा कैसे कब हुआ कि आपने किसी और शायर की गजल या शेर अपने नाम से लगा दिया? ये तो मुमकिन ही नहीं, शायर ऐसा लेकिन कर नहीं सकता। बिल्कुल, अब जो लेकिन वो शायर ही नहीं है उससे आप ये शिकवा भी कैसे? अजीब सी बात है कि भाई इसने चोरी कर लिया, ये कर लिया, उसे शायद नहीं। हाँ, दूसरी बात है, आप फिक्री तौर पर इतने कमजोर होते हैं और किसी की कही हुई बात से इतने मुतासर हो जाते हैं कि आप उससे ना तो आगे सोचते हैं ना उससे अलहदा सोचते हैं, वो सोच आपके अंदर रचाव इख्तियार कर लेती है, वाह वाह, तो वो फिर किसी जरिए से इजहार पा लेती है। ये भी जी एक जी तरह का आप कह लें कि वो, अब इसे क्या नाम सरका जी। कहे या जो भी मुनासिब नाम अच्छा, इसके लिए हो, वैसे तो वो लोग होता है। दिल को समझाने लेकिन के लिए तवारद तवारद कहते हैं कि तफाकिया मुमासलत होती रही पहले भी, लेकिन इन दिनों को ज्यादा मुमासलत होना शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा, अनवर उसकी ਜ਼ਾਹਿਰ वजह है ਸਾਹਿਬ, ਅਨਵਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਤੋਂ। जी, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ वालेकुम ਨਜ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ अस्सलाम। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਅਬਾਬ ਸਾਹਿਬ भी और बलकार औलख, बहुत सारे दोस्त नाले तैयार ने जॉर्ज और खुश ने केसरदार आपका साहब जवाब सलाम दे। बाबा जी। मैं ये मेनू अनवर लग रहा है जाहिद कि साहब फिर हमारे मौसिम हैं, बुजुर्ग हैं, और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है, हमारे वाह रहनुमाओं में है मुस्लिम में। जी, बिल्कुल जो उन्होंने ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ और माशाल्लाह जिन्ना सोना और ज्यादा लिखते ने ते आजकल नज़्म है या इलेक्शन गजल है वो ने। बहुत पायदार और शानदार। जी हाँ, आप जी देखें, आप ऐसे किसी शायर को जब पढ़ते हैं, जी मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई कहीं लगाव खाती चीज या कहीं से मुमासिल चीज नजर आ जाए, ये मुमकिन नहीं होता। अब मुमकिन वाह, है कि एक शायर अपने आप को दरियाफ्त करने में कामयाब नहीं हो रहा। हम्म, अब बिल्कुल आप सही। अपने आप को दरियाफ्त करते हैं और उसे दूसरों के सामने पेश करते हैं, आप इजहार करते हैं, इजहार पाती है आपकी आपके जज्बात या आपका मुशाहिदा, वो जी एक जी, अलग अलग और इनफरादियत के साथ सामने आती है, अलग तर्ज पर सामने आती है, अलग उसका इजहार का जरिया ही अलग हो जाता है। बिल्कुल सही लेकिन बात, जब तक बिल्कुल। आप यहाँ से मुतासिर हैं, वहां से मुतासिर हैं, अपने आप को दरियाफ्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हम्म, आपकी आवाज जाहिर है वो किसी न किसी की आवाज के साथ वो जरूर लगा खाती है, या उसका कोई ना कोई वो किसी न किसी की आवाज में छुप जाती है। यही बिल्कुल तवारुद सही।
की कसरत है आजकल, जिसे आप तवारुद की कसरत कहते हैं, मेरे जी जी, नजदीक वो अपने आप को दरियाफ्त ना कर पाने की एक सूरत है। वाह 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 वाह। वो होता कहते है नहीं किसी शायर न किसी हमेशा। में छुप जाएंगे, अब जी जी, किसी ना किसी में छुप जाता है बंदा। तो वाह ये, वाह वाह। यानी मैं बोलते हुए किसी फलां का फलां जैसा दिखाई दूं, मैं हाँ, चलते हुए फलां जैसा लगूं, ये भी सारा तवारुद और सरका ही है, और क्या है। वाह वाह वाह। तो शायर जहां भी हमेशा होगा, जी सुने क्योंकि थे। जी आप इसी चलिए। मुआशरे के फर्द है, यही मुआशरा आपकी तरबियत करता है, तो ये चीजें वाह सामने वाह। आती रहती है। नहीं तो है सुनिया फिर मानना। शायर हमेशा हमेशा ही खूबसूरत ख्याल रखता है। और ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਾਹ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਾਹ ਹਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? इस हवाले से तारीख में भी आपको मिसालें तो मिल जाती हैं, जाहिर है। इनकलाब को बुनियादी जी जी, तौर पर, जो इनकलाब है, मेरा ख्याल है वो जहनी सतह पर नमूदार पहले होता है, और वाह वो वाह, माशरती और समाजी सतह पर वो बाद में इजहार पाता है। बेशक। तो अब जहनी सतह पर जो इनकलाब है, वो जी शेर जरूर पैदा कर सकता है, और ऐसा होता आया है, तारीख में महफूज है। शायरी अपने अंदर जो मजबूती और पायदारी और जान रखती है, तो ये मुमकिन होता है शायरी के जरिए से, बिल्कुल होता है, हमवार कर सकती है। लेकिन वो पहले तो जहनों पर दस्तक देने वाली शायरी हो ना, यानी जी जी, आपका बिल्कुल सही। ख्याल सोचने पर मजबूर तो करता हो शेर आपका, और आपकी किसी तरफ तवज्जो तो दिलाता हो, यानी आपका एक नजरिया हयात है। जो भी जी बड़ा जी, फनकार या शायर है, उसका अपना नजरिया हयात है, और वो बड़े गैर हम्म महसूस तरीके से अपने पढ़ने वाले और सुनने वाले में इंजेक्ट कर देते हैं, हम्म, और वो उसका नजरिया मुंतकिल होता है, वो उसकी ज़हनी बेदारी का बायस बनता है, या उसे मुशाहिदे की नई जेहतें दरियाफ्त करने की दावत देता है। ये वाह ज़हनी इनकलाब, और ये आगे चलकर मुआशरती और समाजी इनकलाब का बायस होता है, जरूर होता है। आपको इसकी वाह। अच्छा तारीख में मिसालें भी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਫਤਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਣਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਪਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ 'ਚ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਰਹੂਮ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? देखें, जी साढ़े तो अगली जनरेशन आ रही है ना आजम साहब, जी जी, वो बच्चे होंगे ने, पर बच्चे नहीं होंगे, तुसी देख रहे हो, ठीक है। हुण हो की रहा भला, यानी उन्होंने इर्द गिर्द का बिल्कुल माहौल ही चेंज हो चुका है। इतनी बरक रफ्तार दौर दी पैदाइश ने कि वो अपनी उम्र तो अगे का उन्होंने हिसाब किताब है। सानू लगता भी है कि अपनी उम्र तो बड़ी गल कर गया है, या अपनी उम्र तो बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा है। खैर, ये एक मुआशरती और जमाने की जो हिस्सियात है, वो ये अमल दखल में। जितों तक मेरी गल की है तुसी, ते मैं, मेरा ख्याल नहीं है कि मैं तो उम्र तो बड़ी गल करता हूँ, लेकिन बहरहाल अगर दोस्तों को ऐसा लगता है, तो मेरा ख्याल है सियाने लोगों को सुनन नाल, सियाने लोगों को पढ़न नाल, इंसान के अंदर वो सोच और फिक्र जी है इंजैक्ट होती रहती। शायद वो किताबां, बजुर्गों की सोबत, सियाने लोगों को सुनना, सियाने लोगों को पढ़ना, या साढ़े इर्द गिर्द का मुआशरा और माहौल, सारा कुछ बंदे नूं सियाना कर देता है। आजकल कौन कमला कौन है मलिक साहब, सारे ही सियाने ने। बाकी ये साडा मुआशरा, या साडे अंदर जितने भी लोग होंगे ने ना, खास तौर पर जड़ा तखलीककार है, शायर है, मुसव्विर है, या मौसीकी नाल वाबस्ता कोई आदमी है, या होर बहुत सारे फनून है ने इस तरह, उन्हें अंदर जो तखलीकी सलाहियत बेदार होती है, और उन्होंने इजहार देना चाह रहा होंगे, तो सारी गल है अपनी उम्र और उस
ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚਦਾ भी है और उस तो ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ पैदा हो जाती है। और बाज दफा वो जाहिर ऐसा लगता है कि ये जैसे अपनी एज से, अपनी उम्र से बड़ा काम करने की बात कर रहा है या अपनी उम्र से बड़ा सोचता है। अब ये कहाँ तक होता है, कैसे होता है, ये तो पता नहीं है। अब शिव कुमार को आप पढ़े, बड़ी नौजवान उम्र में उन्होंने इतने बड़े बड़े उनके मिसरे हैं या उनकी नज़में हैं, उनके गीत हैं। तो 25-30 साल 35 साल का आदमी अगर आप उम्र के लिहाज से देखें, अब 80-80 साल के लोगों को शेर कहते हुए भी आप सुनेंगे, आप परेशान भी होंगे, हैरान भी होंगे। मैं इसे आसान लफ्जों में बात नहीं कर सकता। और आप आज हमारा नौजवान है तो बहुत सारे मैं खुद चूंकि समझता हूँ शायद अभी नौजवान ही हूँ, तो अच्छा शेर कहने वाले बड़े लोग हैं। तो ये तो बड़ी जमाना इंसान को सियाना कर देता है, दाना कर देता है। वाह वाह वाह, ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ੀ ਔਰ ਇਨਕਸਾਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦਰਦਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਗੁਲਕਾਰ ਔਲਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ कि मैं ही तस्वीर में नहीं आया। ये पूरी गजल तो नहीं है, 2 शेर ही आई है और ये मुकम्मल नहीं हुई थी। मैं सुना देता हूँ, दोनों शेर ही सुना देता हूँ। याद आया बलकार औलख साहब से मुलाकात भी है हमारी, पाकिस्तान आए थे तो मुलाकात हुई थी और उस दौर उसी मुशायरे में ये मैंने अशार सुनाए थे। बलकार भाई को भी आदाब है, सत श्री अकाल है, सलाम है मेरी तरफ से। 2 शेर भी सुना देता हूँ। खत लहू से भी लिख के देखा है, खत लहू से भी लिख के देखा है, रंग तहरीर में नहीं आया। वाह वाह वाह। सबसे आगे भी मैं खड़ा था मगर, मैं ही सबसे आगे भी मैं खड़ा था मगर, वाह, मैं ही तस्वीर में नहीं आया। वाह 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 वाह। और ये 2 ही अशार थे और तब से आज तक ये 2 ही है। सर कमाल है कि दो शेरां ते तुसी अक्सर मुशायरे लुट लेंदे हो। ये ते बड़ा कमाल है कि सानू ते अज पता चलिया कि गजल भी पूरी नहीं, लेकिन रौला इहदा बड़ा अच्छा। कुछ लफ्जां च बरकत भी हुंदी है, या इंज कह लो कुछ गल ना हर दिल दी गल हुंदी। ते ये मैनूं इन्ने लोकां कोल मैं सुनी है और इन्ने लोग इहदे फैन ने, ते उहनूं कोई ये चाहिदा कि पूरी भी हो जाए गजल। हुण ये ना होवे 2 ही शेर रह जाण ते इहदे ध्यान। आम का पेड़ है या किसी भी फलदार पौधे को आप जबरदस्ती उस पर फल कैसे लगा सकते हैं? लग जाएगा जब लग जाएगा। क्या बात है, क्या बात। अच्छा सर ये दसो कि जी ਤੁਹਾਡੀ नजर च जदीद शायरी की है? वैसे जदीद शायरी दी बहुत सारी तारीफां ने, लेकिन तुसी की समझदे हो जदीद शायरी की है? और आया है अगे नूं जाण दा सफर है या पिछे पैरी टुरने पे हैं? बड़ी बुनियादी सी बात। अच्छा मैं ना पंजाबी च गल करदा, उर्दू च करन लग जाना या फिर पंजाबी से परेशान नहीं हो, कोई गल नहीं। मेरा एक है स्टाइल हो जाता है बंदे को। नहीं बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा खुला हो रहा है। अच्छा ये जड़ी बड़ी बुनियादी सी गल है मलिक साहब जी। हाँ, जदीद है ना कोई भी चीज किसी सतह ते जदीद है। शेर है, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज है, बल्ब है या कोई भी चीज है जिन्हें तुसी जदीद या मॉडर्न आखदे हो। जी जी। शेर भी हद तक इटसेल्फ वो हर आने वाले दौर च कदीम हो जाएगा, ओदी जदीद दी फिर की तारीफ रह जाएगी। वाह वाह वाह। जदीद मेरे नजदीक या जड़ा मेरे को नाकिफ है यानी जदीद तो हर आने वाले दौर में ज़ाहिर कदीम हो जाता है। क्लासिक अगर उसमें एक सलाहियत है, तख्लीकियत है, उसमें तख्लीकी शान है, उसके तंजीमी उसूल ऐसे हैं कि वो आने वाले दौर में कदीम कहलाने के बजाय क्लासिक का दर्जा इख्तियार करे, तो ये एक दूसरी बात। अब जैसे हमारे यहाँ होता है कि एक बड़ी आम सी बात है, शायद दोस्तों को बुरी भी लगे या अच्छी, खैर आ गई है तो मैं कह देता हूँ कि बाज दोस्त मुनफरिद होने की बजाय अजीबो गरीब हो जाते हैं। वाह वाह वाह। तो उस अजीबो गरीब इजहार को जदीद इजहार कह दिया जाता है। अब ये तो खैर अपने अपने तौर पर देखी जाने वाली चीज होती है। जी जी। अब जदीद मेरी नजर में क्या है? मेरी नजर में जदीद वो है जो आपका
जदीद तर्ज एहसास जिसको कबूल करता है और आप जदीद तर्ज एहसास को अपील करने में जिसके जरिए कामयाब हो रहे हैं, वो जदीद शायरी या जदीद मुआशरा। आप जदीद तर्ज एहसास को जिसके जरिए से अपील कर रहे हैं, वो शेर जदीद शेर है। अब जदीद तर्ज एहसास को आप किस तरह से अपील कर सकते हैं, उसमें डिक्शन है, उसमें आपका तंजीमी कवायद है, या आपकी लफाजी है, आपके मजामीन, अब सब्जेक्ट या मजमून शेर का जो बयानिया है, वो सारी चीजें वो मिलकर किसी चीज को नया करती हैं या जदीद बनाती हैं। तो अब ये सब जब किसी जदीद तर्ज एहसास को अपील करने में कामयाब है तो वो जदीद है। अब जदीद तर्ज एहसास को अपील नहीं कर रहे हैं, गजल में ट्रैक्टर का लफ्ज इस्तेमाल कर देने से तो वो जदीद नहीं हो जाएगी ना, या गजल में पंखा लफ्ज इस्तेमाल से तो वो नहीं हो जाए। वो जदीद तर्ज एहसास को किस हद तक अपील करता है, वो जदीद है। वाह वाह आफ्ताब भाई, तो ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤੋਕੋ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਜਦੀਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਚ ਕੋ ਮਕਸਦੀਅਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਫਹੂਮ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ आफ्ताब भाई ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੰਗ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ अमूमी बाज नजरियात होते हैं, अवाम की सतह से वो कयाम पाते हैं। बाज नजरियात या बातें वो जाहिर बात है बड़े अजीम जहनों से हम तक पहुंचती है, वो किताबों के जरिए पहुंचती हैं, खिताबात या खुतबात के जरिए से पहुंचती हैं, या मुख्तलिफ जराए से हम तक पहुंचती है। एक अवामी राय हम तक पहुंच रही है, दूसरी खवास की जो नजरियाती गुफ्तगू है या नजरियाती ख्यालात है वो हम तक पहुंच रही है। अब हम किसी भी जमाने में हो, पत्थर के जमाने में हो या इस जदीद दौर के तेज तर दौर के फर्द हो, अब ये कहना कि अगर मैं अख्तर उस्मान, मीर तकी, यानी मैं जदीद शायरों में से एक शायर है, अब मिसाल के तौर पर अख्तर उस्मान है, मैं उसको पढ़ूंगा तो मेरी शायरी कुछ ऐसी हो जाए। मैं इकबाल को पढ़ूंगा तो मेरी शायरी इकबाल जैसी हो जाए। अब ऐसा उसी वक्त होगा जब शायर अपने आप को दरियाफ्त करने में नाकाम रहा है, वरना मुतालिया तो आपको अल्फाज अता करता है, आपको कदीम फिक्र से, आप देखें, आप अपने माजी को पूरी तरह से या किसी तरह से अगर जानते नहीं है, समझते नहीं है, या उसका माजी आपके मुताले और मुशाहिदे में नहीं है, तो आप अपने हाल को पूरी तरह मुतय्यन नहीं कर पाते। ये गलत बात है। मुतालिया तो बहुत अच्छी चीज है। आप ये बात कर दें कि मुतालिया करके मैं तो शायर नहीं रहूंगा या मेरी शायरी वो किसी दूसरे शायर में छुप जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने तर्ज इजहार को दरियाफ्त नहीं कर सकते। आपको डर है कि आप किसी और में खो जाए। तो पहले तो आप अपने आप को दरियाफ्त करें, अपने आप को ढूंढें, तो उसके बाद आपका मुतालिया आपकी ताकत बनता है, ना कि आपकी कमजोरी। तो हम अपने माजी से किसी भी कौम, अब हम तारीख है, इंसान है, हम इंसान अपने इर्तिकाई मराहिल को किस तरह जान सकते हैं? उस पर वही आएगी, कोई फरिश्ता आएगा, वो मुताले से देखेगा। और अदब चूंकि हर दौर में इंसान के वजूद की जिहाद को दरियाफ्त करता रहा है, तो उन जिहाद को समझे बगैर हम अपने वजूद पर गौर फिक्र में मुकम्मल तौर पर कामयाब कैसे हो सकते हैं? तो हमें अपने आप को दरियाफ्त करना चाहिए। तो हमारा मुताला हमारी ताकत बनता है, ना कि हम किसी में छुप जाए। हम किसी में, अगर आपसे कोई ये कहे, मुझसे कोई ये कहे कि मैं इकबाल को इसलिए नहीं पढ़ता कि कहीं मेरी शायरी इकबाल जैसी ना हो जाए, तो इसका मतलब है उसे अब तक ये पता नहीं है कि वो कौन है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आफ्ताब भाई, बहुत अच्छा तुसी जवाब देता है। तो और मैं भी मेरी एक जाती मुताला करना चाहिए। मैं तो मुताले के हाथ में हूँ, और मैं समझता हूँ कि मुताला तो बहुत अच्छी चीज है, बल्कि करना चाहिए हमें। मेरी राय तो ये है। जी जी, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਰਾਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਦਰਿਆਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਣ ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਆਜ਼ਮ। अच्छा जी मैं मेरे को ठीक है जी देखने थोड़ा दोबारा देखो हुण आ रही आवाज जी थोड़ी आवाज नहीं मेरे तक अच्छा वो तुसी फिर दोबारा आओ जरा एक दफा मैं फिर दोबारा थोड़ा हुण देखो जी हुण आई आवाज जी हुण नहीं आ रही जी नहीं आ रही मेरी आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਨਵਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਆਫਤਾਬ ਨਵਾਬ ਚूंकि ਉਰਦੂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ और जिस तरह से उन्होंने कलाम सुनिया पंजाबी और उर्दू और बहुत ही खुशी होती है कि वो अपनी उम्र तो अगे का शायर है। सुखदीप औजला भी तशरीफ लियाए ने सानू ज्वाइन किया उन्होंने। अच्छा उन्होंने कहा पहले भी मैं इन्होंने शायरी पढ़ी है पहलों मैं किराए की पढ़ी है। अच्छा ये संदीप भाई सुना चुके ने होनी है तुहाडे आउण तो पहले ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿੱਲਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਰੈਨੂ ਨਈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਫਤਾ ਭਾਈ? ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ या खुद तो ये पौधा जो आप ही फुट पे है? शेर अदब या तखलीक है ना मलिक साहब जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਤਾਲਿਆ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। अब मीर ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। वाह किसी ना किसी हवाले नाल ते जरूर बन जाए जी जरूर। वाह वाह शेर कहने वाला ये कोई भी तकलीफकार है ना जी तो जाहिर है वो उसके तंजीमी असूलों के हवाले से उसे इक्तिसाब तो करना पड़ता है। वो किताबों से करता है वो से सुनता सीखता है। मैं चूंकि मेरे ख्याल नेट का कोई ना इंटरनेट का मसला आ रहा है। कोई नहीं लेकिन ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 12 एक गुलकार है। अब उसकी तबीयत में और फितरती तौर पर उसमें गाना गाने और गीत के जो अनासिर हैं वो उसमें मौजूद है और वो चीज वो कहीं से नहीं सीखता ना कहीं से इक्तिसाब करता है। लेकिन उसके बहुत सारे तंजीमी उसूल ऐसे होते हैं जो वो सीखता है। बाज़ औक़ात नहीं भी सीखता। शाज़ो नादिर ऐसा भी होता है जैसे गालिब का दावा और गालिब के बारे में मशहूर है कि वो बेउस्तादा शायर है। बहुत सारे हमारे दोस्त इसे बुरी नजर से भी देखते हैं। लेकिन शेरी सीमी उसूल जो है मैंने बाज़ाब्ता तौर पर सीखे हैं। हमारे उर्दू के उस्ताद हुआ करते थे फारूक सोमरू साहब, मौलाना फारूक आजम आजाद हमारे उर्दू के उस्ताद थे के माहिर थे, उर्दू के माहिर थे। तो मैंने उनसे ये जो उरूज बहर और तंजीमी उसूल है शेर के तो
उनसे मैंने सुना था कि उरूज भी होता है, वजन में शेर कहा जाता है। उन्होंने मुझसे पहली बार ये मैंने उनसे सुना, तो मैंने कहा ये वजन में शेर कहना क्या होता है। तो वहां से एक सीखने का अमल उन्होंने मेरी रहनुमाई की, मैंने सीखा है। मैं समझता हूँ तंजीम उसूल शायर, अब वो शायर नहीं है, से मैंने ये पहली दफा सुना कि शेर में वजन होता है और किस तरह से होता है, वो खुद शायर नहीं है। क्या बात है, क्या वाजिब वो भी सलाम है जो उस उस्ताद ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ मुझे फर्क उन्होंने उस्ताद है और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ भी हो गया इस उसके तो ही। बाद फिर किताबें अच्छा। बहुत सारी पढ़ी, मुताला जारी रहता है, के पढ़ने लिखने पढ़ाने से भी एक ताल्लुक उस्तवार है, तो पढ़ाता हूँ तो पढ़ती हूँ। फिर यह है कि मुताला वैसे भी चूंकि आदत बन गई है, तो पढ़ने लिखने में तो आप जिसको पढ़ रहे हैं और अगर उसको आप कबूल कर रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, वो किसी ना किसी सेंस में आपका उस्ताद तो है। मैं कायल हूँ इस ज़िमन में उस्ताद शागिर्द का, कायल में हूँ। अगर आपका सवाल ये होता कि आप मानते हैं शायरी में कोई उस्ताद हो सकता है, शागिर्द हो सकता है, तो मैं इसका कायल हूँ। यानी अच्छा उस्ताद आपकी माँ, आपका बाप, आपके बड़े बहन शक्ति एतबार से बहुत कुछ आपको सिखाते हैं, वो बुनियादी तौर पर आपके उस्ताद होते हैं। इंसान का सबसे पहला स्कूल उसका घर होता है। तो घर के जितने बड़े अफराद होते हैं, जो मॉडल्स उसके सामने होते हैं, वो असातिज़ा होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं। तो शेरी मैदान में जब आ जाते हैं या किसी भी तख्लीकी मैदान में होते हैं, तो बड़े तख्लीकार जिनसे आप बहुत कुछ ले रहे होते हैं, ये सीख रहे होते हैं, ये एक सेंस आपकी हिस्सियात आपकी जो बुलंद हो रही होती है। जैसे इकबाल ने एक जगह लिखा है कि किसी भी अजीम जहन से राब्ता कायम कर लेने के बाद हमारी रूह अपना इक्तिशाफ करती है, और जिस तरह मैंने गोयटे के तखय्युल की बेकरानी से आशनाई के बाद अपने तखय्युल की तंग दामनी को जांचा। यानी इकबाल ने कहा कि मैंने गोयटे के तखय्युल को देखा तो मुझ पर अपने तखय्युल की तंग दस्ती वाज़े हुई। तो इस सेंस में गोयटे इकबाल का मुकर्रर हो जाता है कि उसने इकबाल के अंदर ये एहसास पैदा किया, इससे आगे भी जाया जा सकता है। तो हर वो आपको मेरे ख्याल में होता है, ये मेरी राय ये है इसमें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जी। मैंने असातिज़ा से सीखा है, मैं पूरी लिस्ट आपके सामने रख सकता हूँ जिनको मैं उस्ताद समझता हूँ। मैं तो पंजाब शोरा को उस्ताद समझता हूँ, जिनसे किसी भी सतह पर आपका दिमाग मुतासिर होता है और कुछ नया करने के हवाले से जो आपको तहरीक देते हैं, वो असातिज़ा ही होते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत सर नुक्ता नज़र तुहाडा। मैं भी उस्तादां पर इस तरह ही सोचना और बड़ा ही मुस्बत तुहाडा नुक्ता नज़र मैनूं लगा है। मैं चाहना हुण जिहड़े पिछे 10 मिनट रह गए ने, वो तुहाडा कलाम दोस्तां सुन लईए। बड़ा अच्छा लग रहा तुहाडे नाल गुफ्तगू करना, और दिल नहीं कर रहा कि गुफ्तगू च तातल आए, लेकिन नाल नाल शायरी भी असीं तुहाडे कोल सुनना चाहते हैं। ते अपना कोई अपनी मर्जी दी कोई चीज़ां जी साझियां करो, कोई गज़ल जिहड़ी पूरी होवे। एक गजल आपको सुना देता हूँ। जी जी। फैसला हश्र में भी क्या होगा। वाह। फैसला हश्र में भी क्या होगा। वाह। वहां भी आखिर यही खुदा होगा। वाह वाह वाह। मैं कहीं मिल नहीं रहा खुद को। वाह। मैं कहीं मिल नहीं रहा खुद को। वो मुझे साथ ले गया होगा। वाह वाह वाह। वो मुझे साथ ले गया। बहुत मैं कहीं मिल नहीं रहा खुद को। वो मुझे साथ ले गया होगा। एक गजल के चंद शेर जैसे जैसे याद आते जाते हैं सुना। जी जी जरूर। जानता हूं कि सर नहीं रहना। मैं जानता हूं कि सर नहीं रहना। वाह। इस ज़बान में मगर नहीं रहना। वाह। है खुदा का निजाम खतरे में। वाह वाह। है खुदा का निजाम खतरे में। इस बशर ने बशर नहीं रहना। वाह वाह। और मैं भी दे लूंगा हौसला खुद को। मैं भी दे लूंगा हौसला खुद को। तुम भी जाओ अगर नहीं रहना। वाह वाह वाह। तुम भी जाओ अगर नहीं रहना। तुम भी जाओ अगर नहीं रहना।
होंगे जब देखने के लायक हम, वाह होंगे जब देखने के लायक हम, कोई अहले नजर नहीं रहना। आहा, वाह वाह जानता हूं कि सर नहीं रहना, इस वाह जबाने मगर नहीं रहना। वाह वाह वाह, बहुत खूब आफ्ताब भाई, बहुत खूब। देखो साहब, अगर सुखदीप आप दो बताते जाए जी, तो वो आसानी से याद आ जाता है। जी कोई सुखदीप सवाल औजला हो या सर कोई, वो दोस्त, आसानी से याद है ऐसे। जी सुखदीप औजला सर दोस्त कह रहे हैं कि जी जमीन जी, कुछ भी नहीं, आसमां कुछ भी नहीं है। चले मैं सुना। जी जमीन कुछ भी नहीं है, आसमां कुछ भी नहीं है। वाह, जमीन जमीन कुछ भी नहीं है, आसमां कुछ भी कुछ नहीं भी, है। वाह कोई जितना बड़ा भी है मियाँ, कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह, कोई जितना बड़ा भी है मियाँ, कोई वुकत नहीं बज़्म फकीरा में अकड़ की। आहा, वाह वाह, बहुत खूब। कोई, कोई कोई वुकत नहीं बज़्म फकीरा में अकड़ की। तू अपने घर है जो भी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह, हमें थी इससे बढ़कर जलने वालों से तवक्को। हम्म, हमें थी इससे बढ़कर जलने वालों से तवक्को। हमारे देखने में ये धुआं कुछ भी नहीं है। आहा, वाह वाह, हमारे देखने में ये धुआं कुछ भी नहीं। ये धुआं कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे आफ्ताब भाई, बहुत खूब जी। कोई होर शेर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ रहे ने, कोई बेशक दो दो ही होन। जी जी, आप मुझे याद दिलाते हैं, मैं सुना देता हूँ। वैसे मुझे जो याद आ रहे हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी जरूर जरूर। अच्छा सर, एक जी, जी सुनाओ। रंजिशें सब मिटा के आया हूँ। आहा, रंजिशें सब मिटा के आया। रंजिशें सब मिटा के आया हूँ। वाह मैं बहुत दूर जाके आया हूँ। वाह वाह, बहुत मैं खूब। मददगार था चिरागों का। वाह वाह वाह, मैं मददगार था चिरागों का। काम लेकिन हवा के आया हूँ। आहा, वाह वाह वाह, मैं मददगार था चिरागों का। मैं मददगार था चिरागों का। चिरागों का काम काम, लेकिन हवा के आया हूँ। वाह 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 कांधा थपक रहा है मेरा। वाह, दश्त कांधा थपक रहा है मेरा। खाके दरिया उड़ा के आया हूँ। आहा, वाह वाह वाह, खाके दरिया उड़ा के आया। खाके दरिया उड़ा के आया हूँ। वाह, उसको मिल भी नहीं सकूंगा मैं। आहा, उसको मिल भी नहीं सकूंगा मैं। और पता भी बता के आया हूँ। आहा, वाह 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 वाह, वो और भी पता खुद भी, को वली समझता है। आहा, वो भी खुद को वली समझता है। आहा, जिसको पागल बना के आया हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वो भी खुद को वली समझता है। वो भी खुद को वली समझता है। आहा, वाह जिसको वाह पागल बनाया हूँ। वाह, बहुत खूब जी। हरविंदर साहब आए ने और कहते ने कि ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ गजल की जमीन च उन्होंने किया है कि गुफ्तगू की तो खैर बात ही क्या, खामोशी भी बस तेरी ये बहुत घड़ी हुई है। जबरदस्त था बाकी। जी गुफ्त मैंने समझ नहीं आई कि क्या अच्छा, मलिक साहब। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜੀ कि गुफ्तगू की तो खैर बात ही क्या, खामोशी भी तेरी घड़ी हुई है। आफताब नवाब वास्ते। हाँ अच्छा, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ कौन तेरी कही नहीं करता। जी, मैं ये गजल सुनाता हूँ। जी जरूर। जी आ रही है आवाज।
अच्छा, थोड़ी आवाज का मसला बन रहा जी उधरों इंटरनेट का। और आफ्ताब नवाब को हुणी सुनने जी, कौन तेरी कही नहीं करता, क्योंकि साडे दोस्त और कीमती गल्लां दे आगू साडे हरविंदर HS ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਨਵਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਕੀਦ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਆਣਾ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਫਤਾਬ ਹਰੀ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਨਵਾਬ ਹਰੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਨਵਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਫਤਾਬ ਨਵਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਗਜ਼ਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ पूरी कर लीजिए। जी जी, मैं, मेरी आवाज ठीक आ रही है मलिक साहब? बिल्कुल ठीक होगी जी, आवाज ठीक आ रही है मलिक साहब? बिल्कुल ठीक है, सुनाओ। ठीक है, चले मैं गजल हाजिर करता हूँ जो दोस्तों ने फरमाइश की है। अक्स की जान पर बनी हुई है, अक्स की जान पर बनी हुई है, आईने में हवा चली हुई है। वाह वाह वाह, फैल जाए न सारी बस्ती में, फैल जाए न सारी बस्ती में, बात दीवार ने सुनी हुई है। वाह वाह वाह, फैल जाए न सारी बस्ती में, बात दीवार ने सुनी हुई है। शौक है रोशनी को छूने का, वाह वाह, शौक है रोशनी को छूने का, हाथ पर तीरगी मली हुई है। वाह 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 वाह, गुफ्तगू की तो खैर बात ही क्या, वाह, गुफ्तगू की तो खैर बात ही क्या, वाह, खामोशी भी तेरी घड़ी हुई है। वाह वाह वाह, गुफ्तगू की तो खैर बात ही क्या, खामोशी भी तेरी घड़ी हुई है। इसलिए यूं ही सर पर नहीं सजा रखी, वाह, यूं ही सर पर नहीं सजा रखी, खाक से आबरू मिली हुई है। वाह वाह वाह, यूं ही सर पर नहीं सजा रखी, वाह, खाक से आबरू मिली हुई है। इसलिए आग थूकता हूँ नवाब, वाह, इसलिए आग थूकता हूँ नवाब, वाह, सर्द मेहरी जो मैंने पी हुई है, वाह वाह, अक्स वाह की वाह, जान पर बनी हुई है, वाह आईने में हवा चली। वाह
ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ, ਤੇ बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਪੇਜ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਰਦੂ ਕਲਾਮ, ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਆਫਤਾਬ नवाब ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ मेरे लिए भी एजाज की बात है। और पंजाबी का मैं तमाम सुनने वाले दोस्तों से मुखातिब होकर गुजारिश करूंगा, पंजाबी का जिसका एहतमाम आज़म मलिक साहब संभालते हैं और कीमती गल्ला हमारे मशरकी पंजाब से जिसका एहतमाम हरविंदर एचएस संभालते हैं, तो पंजाबी अदब के साथ उर्दू अदब का एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होना ये बड़ी खुशाइंद बात है और हमारे लिसानी मेल जोल की बहुत खूबसूरत मिसाल भी है। पंजाबी और उर्दू अगर हम टेक्निकली स्ट्रक्चर के एतबार से तो उर्दू कहने और पंजाबी कहने वाले दो मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन मैं इससे ज्यादा की तवक्को रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि अदब चूंकि इंसान के वजूद की दरियाफ्त का नाम है, तो ये दरियाफ्त या ये गौर फिक्र वो किसी भी जुबान के जरिए हम तक पहुंचता है, खा उर्दू हो, खा पंजाबी हो, खा अंग्रेजी हो, लातीनी हो, फ्रांसीसी हो, इब्रानी हो, तुर्की हो, कोई भी जुबान हो, फारसी हो, तो हमारे लिए इन सब जबानों में तख्लीक होने वाला अदब इसलिए अहम है कि वो हमारे हिस्से का, हमारे वजूद के बारे में गौर फिक्र करता है, तो हमें उसे अहमियत देनी चाहिए। मैं पंजाबी अदब को मुझे आप यकीन जाने मैं तहे दिल से कहता हूँ, मुझे हजरत बुल्ले शाह उतने अजीज, बल्कि उससे ज्यादा अजीज हैं जितने मीर अजीज हैं। मेरे लिए जो मकाम मर्तबा मीर तकी मीर का शायद उससे ज्यादा बुल्ले शाह का इसलिए है कि बुल्ले शाह उस जबान में मेरे हिस्से का गौर फिक्र करके गए हैं या मुझे समझा कर बता कर गए हैं जो मेरी माँ जिस जबान में मुझसे गुफ्तगू करती है। तो मेरे लिए बहुत है। मैं उर्दू में शेर कहता हूँ, उर्दू पढ़ाता हूँ, उर्दू पढ़ी है, उर्दू पढ़ रहा हूँ, लेकिन पंजाबी मुझे बहुत अजीज है। और इस तरह का तासुब, ये ज़हनी गिरावट कहूंगा मैं इसे, नहीं होना चाहिए। मैं तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं पंजाबी का और कीमती गल्ला ते मैं जदों भी इस तो पहले भी एक दफा मैनू एजाज हासिल है इस पेज ते हाजिरी दा, मेरे लिए बहुत खुशाइंद बात है। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ उर्दू शायर इकट्ठे ਹੁੰਦੇ ਆ और ਸਾਡੇ बड़े एक दूसरे ਨਾਲ प्यार मोहब्बत है। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ बड़े अहम ने पंजाबी शायर या उर्दू शायर, फारसी शायर, अंग्रेजी शायर, अदीब लिखण वाले बहुत अहम ने। तखलीक अहम है ना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, जातियात और सियासी मामलात और ये सारी चीजें सानवी हैसियत रखती ने और किसी अदीब वास्ते अच्छा भी नहीं है तो किसी जबान की मुखालफत कर रहा हो या किसी जबान बोलने वाले की मुखालफत कर रहा है। जबान की सतह ते खास तौर पे इल्मी अदबी गुफ्तगू करते हुए बंदा चंगा भी नहीं लगता। जी जी, बहुत अच्छा ही नहीं लगता कि अगर आप जबान की मुखालफत कर रहे हो, ऐसे अदब की मुखालफत कर रहे हो जो आपके हिस्से का गौर फिक्र करता है, आपके वजूद की खबर देता है, तो ये बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। ये मेरी जाती राय है। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो पंजाबी का और कीमती गल्ला को जरूर ज्वाइन करें। आइंदा आपको इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि ये एक ही प्लेटफॉर्म है, एक हमारे यहाँ के पंजाब से है, दूसरा हमारे हमसाया पंजाब से है जो हमारा अपना ही है, तो आप जरूर इसे ज्वाइन करें। उर्दू पंजाबी दोनों तरह के दोस्तों से आपकी यहाँ मुलाकात होती रहेगी। उर्दू बोलने वालों के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको उर्दू सुनाने वाले यहाँ आते रहेंगे, और जो सिर्फ पंजाबी सुनना चाहे पंजाबी वाले भी आते रहेंगे, और मेरे जैसे दोनों जुबानों के लोग आते रहेंगे जिनकी मादरी जुबान पंजाबी है और वो शेर उर्दू जुबान में कहते हैं या बात उर्दू जुबान में करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात।
ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਫਤਾਬ ਭਾਈ। ਸੀ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਨੇ, ਅੱਛਾ ਸਮਝਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਭ ਬੇਟੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਜ਼ਮ ਮਲਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖ।